beautiful people, welcome to the High Priestess Tarot. अगर आप इस चैनल में नए हो then please do like, share and subscribe the video and be a part of the family. So आज का जो reading है it is a general reading about अगर आप single है then आपके जो future husband या wife या life partner होंगे तो वो कैसे होंगे, आप क्या expect कर सकते हो, क्या expect नहीं कर सकते हो. It is a general reading about that. So if it resonates, अगर आपको ऐसे ही चाहिए then it's good, and if it doesn't resonate then please don't try to force it and fix it क्योंकि ये general reading है. So we'll see. We have two piles. This is pile number 1, black clip बोल सकते हो, clutcher, and this is a golden one, pile number 2. So select your piles and then we'll start the reading. Okay, so अगर आपने ये black color का clutcher choose किया है then you are pile number 1. So this is your reading about how your future husband or wife will be. This is basically for all the single people out there. लेकिन अगर आप relationship में हो and आपको फिर भी जानना है then you are most welcome and I hope it resonates. So okay, we have the 10 of Wands. We have the 7 of Pentacles, and we have 8 of Cups in reverse. Okay, let me see. The first feeling that I'm getting right now is with the 10 of Wands. I think ये person बहुत ही ज़्यादा passionate है about everything he does. मे बी आपके लिए ये बहुत पैशनेट होंगे या फिर ये अपने काम के लिए बहुत पैशनेट होंगे. विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक ये बहुत ही सोच समझ के काम करते हैं. जो भी काम करते हैं ही इज़ वेरी लॉजिकल एंड ही इज़ वेरी रैशनल अबाउट व्हाट ही डज. वो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते हैं एंड बहुत हार्ड वर्किंग है. आई एम गेटिंग दिस एनर्जी. He works hard. Yeah, basically he's very passionate about what he does and he will be very passionate about you. तो ये आपको बहुत like आपसे ये बहुत kind of obsessed होंगे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे and प्यार भी करेंगे of course. With the 8 of Cups in reverse, I think कुछ लोगों के लिए, ठीक है, for some of you, my viewers, I think आप मे बी इस person के साथ already relationship में हो and या तो आप connected हो इस person से, आप जानते हो इस person को, then I think, ठीक है, it can be a case, आप जानते हो इस person को या फिर आप already इसके साथ relationship में हो, male, female, whatever. Okay, then we have the, what is this? The 6 of Wands in reverse. Okay. We will clarify later. We have the 6 of Wands in reverse and let me see what else. Pile 1. Future spouse of pile number 1. Future spouse, pile number 1. Okay, we'll draw a card. Ooh, we have the 7 of Cups in reverse. And we'll take another card with the, what is this? The Daughter of Cups in reverse. Okay, just give me a minute. Okay, so the feeling I'm getting here is कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, रिलेशनशिप में हो, एंड कुछ लोग नहीं जानते हो, बट ही इज़ वेरी पैशनेट, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई थिंक कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव है अपने लाइफ में भी और आपके लिए भी. लाइक ये मुझे वैसा एनर्जी आ रहा है कि ये लाइक अगर आप
आपके आसपास बहुत लोग हैं, अगर आपके आसपास अगर बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, देन ये पर्सन फ़ाइट लेना चाहेंगे, ये पर्सन विल फाइट फॉर यू। आप इनके लिए एक प्राइज़ जैसे हो जो इनको हासिल करना है लाइफ में, कंपटीशन है उनके लाइफ में कि आपको वो हासिल कर पाए। वो आपको बहुत रेस्पेक्ट करेंगे। विद द 8 of Cups in reverse and the Daughter of Cups in reverse, I think the feeling I'm getting is कि ये लाइफ में बहुत सक्सेसफुल पर्सन होंगे। अगर ऑलरेडी नहीं है देन ये फ्यूचर में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड ही इज़ वेरी डिटरमाइंड। अगर एक बार वो किसी चीज़ को हासिल करने के बारे में सोच लेते हैं तो वो हमेशा हासिल करके ही दम लेते हैं। दैट इज़ द फीलिंग एंड ही इज़ वेरी मैच्योर। वो ऐसे बहुत मैनली है, उनके डिसीजंस, उनके नेचर एंड ऑल। That is the feeling I'm getting, and most of you know this person, some of you don't. If you know this person, it may अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशन में नहीं हो, then it can be a friend. With this, I'm getting this feeling with the 6 of Wands in reverse कि अगर ये आपके फ्रेंड जोन में कोई है, then ये compete करना चाहते हैं उन सारे लोगों से जो आपको पसंद करता है या करती है। सो ये कंपटीशन लेना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं एंड ये बहुत डिटरमाइंड है। एक बार जो इन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो ये किसी के नहीं सुनते, वैसे टाइप के। ओके, व्हाट एल्स? ओके, 2 of Wands. Then we have Daughter of Wands. Ooh, we have the 9 of Cups. So with this, I think I'm getting the feeling मे भी कुछ लोग आप या तो आपके पर्सन के फैमिली या ये जो पर्सन है इनके फैमिली, आपके फैमिली थोड़ा कंजर्वेटिव हो सकते हैं अबाउट द कनेक्शन, बट दैट वोंट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम आई थिंक, क्योंकि ये बहुत डिटरमाइंड लगते हैं। एंड विद द 9 of Cups एंड द Daughter of Wands, आई थिंक आप भी इस पर्सन को बहुत प्यार करेंगे एंड बहुत पैशनेट होंगे इस पर्सन की तरफ। आपको ये बहुत पसंद होंगे, ठीक है। आई गॉट दिस इमेज ऑफ अ वेरी मस्क्यूलर मैन, मस्क्यूलर बॉडी वाला एक पर्सन। मे बी आपको वैसे पर्सन पसंद है या वैसे ये पर्सन वैसे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल। एंड what else I'm getting? Yeah, you are very passionate about this person. I got this feeling कि ये जो पर्सन है ये बहुत क्या बोलते हैं उसको, ये आपके साथ बहुत स्वीट होंगे, बहुत सॉफ्ट पोलाइट होंगे, लेकिन ये दुनिया के लिए बहुत ही हार्ड वर्किंग एंड बहुत ही मस्क्यूलर, स्ट्रॉन्ग एंड एरोगेंट एंड वैसे टाइप का एक इमेज रखते हैं वो सबके सामने। लेकिन आपके लिए ये अपना बहुत वल्नरेबल होंगे, बहुत इमोशनल होंगे, लेकिन दुनिया के सामने ये दिखाते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड यू आर ईच अदर्स विश फुलफिलमेंट ऑफ कोर्स। आप एक दूसरे के लिए पागल होंगे, बहुत पैशनेट होंगे, ऑब्वियसली प्यार होगा एंड एक विश फुलफिलमेंट। आप दोनों जब यू विल गेट मैरिड या फिर आप डिसाइड करेंगे कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ बितानी है, तो इट विल बी द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। We have the 3 of Cups, देखा, celebration, marriage, happiness, success. Yes, definitely. आप बहुत हैप्पी होंगे जब ये पर्सन आएंगे आपके लाइफ में, या अगर ऑलरेडी है तो अगर आप लोग जब डिसाइड करोगे एक साथ रहने का, शादी करने का, देन या देयर विल बी अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, फन,
Ooh, yeah, the Hierophant, which means it is the card of the husband or wife. So definitely he will be your husband. बहुत matured person होंगे, एंड ये बहुत कल्चर्स में बिलीव करते होंगे, बहुत ही matured, डाउन टू अर्थ एंड स्टेबल सक्सेसफुल पर्सन, जो आपको बहुत रेस्पॉन्सिबल होंगे, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे आपका. दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. We have the Two of Pentacles, and also this card popped out, that is the Four of Cups. So with these two, I think ये आपके पास आने से पहले बहुत सोच समझ के आएंगे. Like since ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन है, सो ये जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते, ये जल्दबाजी में कोई लाइफ में डिसीजन नहीं लेते हैं. सो ये जब आपके साथ आएंगे या आपको प्रपोज करेंगे या शादी का ऑफ़र देंगे या आपके लाइफ में आएंगे, कुछ भी कोई भी स्टेप उठाएंगे तो ये बहुत सोच समझ के उठाएंगे. इवन शादी के बाद भी अगर कोई डिसीजन लेना होगा किसी भी कारण से, किसी भी काम से, तो ये बहुत सोच समझ के लेते हैं. ये बहुत एक मैच्योर्ड पर्सन है. आई एम गेटिंग दैट फीलिंग. And he's very passionate about you. Yes, very passionate about you. And maybe आप लोग अगर आप इस पर्सन को जानते हो, देन आपके लिए रात बहुत इम्पोर्टेंट है. आई एम गेटिंग दिस मैसेज. मे बी आप रात में बहुत बात करते हो एक दूसरे से. Yes, I got a message here. Yeah, maybe पर्सन के पास या आपके पास कोई पेट है. आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज. डॉग, कैट, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. बर्ड्स हो सकते हैं. कोई पेट है किसी के पास, या आपके पास है, या आपके पर्सन, ये पर्सन के पास होगा. आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जो शादी होगा या जो मैरिज होगी, देन वो लाइक द मैरिज विल बी वेरी ट्रेडिशनल एंड रीति रिवाज से होगा. एंड बहुत सारे लोग आएंगे. देयर विल बी अ लॉट ऑफ पार्टीज. मुझे ये विजन आ रहा है कि एक शादी का विजन, बहुत सारे लोग हैं. मुझे लहंगा दिख रहा है. आई एम सीइंग अ लहंगा, रेड, मरून, ग्रीन, पर्पल. आई एम सीइंग दीज 4 कलर्स. ठीक है. गोल्डन. यस, मुझे रेड कलर की पगड़ी दिख रही है. ओके. if that resonates, I don't know. Okay, then what else I'm getting? मे बी ये पर्सन जो है ये बहुत पॉपुलर होंगे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में या कहीं पे भी. ये बहुत पॉपुलर है, या आप बहुत पॉपुलर हो तो बहुत सारे लोग बातें करेंगे इस रिश्ते को लेके. नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बातें या डिस्कशंस या वैसे बातें करके. ऐसा नहीं है कि ख़राब बोलेंगे या कुछ नहीं, बस बहुत बातें, बहुत चर्चे होंगे आपके इस रिश्ते को लेकर. या दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग सो फार. ये पर्सन बहुत चार्मिंग है. बहुत सारी लड़कियां इन्हें पसंद करते हैं, या आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, या दोनों को ही करते हैं. बट ये पर्सन सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, या आपको प्यार करेंगे, या आप पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये बहुत मैच्योर्ड है. यू नो, द हैंग्ड मैन. ओके. सो ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे. दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. ये जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे. अगर आप लोग शादी करोगे भी तो ऑब्वियसली करोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, देन द हायरोफेंट, एवरीथिंग. एंड ये रीडिंग भी शादी के लिए है. सो विद द हैंग मैन ये बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेंगे एंड बहुत प्लानफुली होगा शादी. ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी में शादी हो या कुछ. बहुत प्लान करके करेंगे, हर चीज़ प्लान करके करेंगे.
इवन आफ्टर शादी आई जस्ट हर्ड प्लान करके आप एक फैमिली डिसाइड करोगे लाइक फॉर अ बेबी, यू विल प्लान अ बेबी कि आपको कब बेबी चाहिए. वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स. सो अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशन में नहीं हो देन दिस पर्सन इज सिंगल राइट नाउ. अगर ये आपके फ्रेंड है या यू नो इफ़ यू थिंक ऑफ समवन देन मे बी इट इज़ दैट पर्सन. अगर आपके साथ ऑलरेडी रिलेशन में नहीं है अभी देन ही इज़ सिंगल राइट नाउ, या आप सिंगल हो अभी. अगर आप या आप सिंगल हो ये सिंगल है. वी हैव द सन ऑफ सोर्ड्स. तो ये बहुत पॉजिटिव होंगे आपको लेके. आई एम गेटिंग दिस मैसेज. बहुत पॉजिटिव होंगे. ये आपको स्टॉक करेंगे अगर आप लोग जब रिलेशन में हो आओगे या फिर जब मंगनी हो जाएगी या कुछ यू नो जब ऑफिशियल हो जाएगा या आप रिलेशन में आएंगे पहले शादी से पहले. अगर ये लव मैरिज हुआ तो देन ये बहुत बहुत पॉजिटिव होंगे. इवन शादी के बाद ये आपको स्टॉक करेंगे, सोशल मीडिया एंड ऑल देखेंगे कि बहुत पॉजिटिव. यस ओके. ओह वी हैव द सन ऑफ कप्स. सो ये रोमांटिक भी होंगे सिर्फ आपके लिए. ठीक है, दुनिया के लिए ये बहुत स्टबर्न, बहुत ही आई गॉट दिस इमेज ऑफ एन एम्परर राइट नाउ. सो दुनिया के लिए ये बहुत लाइक सब लोग इनको बहुत मान के चलेंगे. ये बहुत गुस्सैल, स्टबर्न, सबके लिए ऐसे दिखाएंगे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ये हूँ. लेकिन आपके लिए ये एकदम लाइक क्या बोलते हैं उसको, आपके लिए पागल होंगे. आपके सामने ये पूरा लाइक अपने आप को ओपन अप करेंगे आपके लिए. यस एंड ही विल लव यू अ लॉट. ये आपको गिफ्ट देना बहुत पसंद करेंगे. वो कुछ भी गिफ्ट हो सकता है, आई डोंट नो, बट ये इनको आपको गिफ्ट देना बहुत पसंद होगा. यस what else am I getting? ये आप पे नज़र रखेंगे बहुत जो बहुत क्यूट है एक्चुअली. नज़र रखेंगे इन द सेंस हमेशा देखेंगे कि आप क्या कर रही हो. ओके विद द वी हैव द 4 ऑफ wands. सो डेफिनेटली यहाँ पे शादी होगा. 4 ऑफ wands बहुत स्टेबल कनेक्शन होगा. एंड मोस्ट प्रोबेबली आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि आपका फर्स्ट जो बच्चा होगा इट विल बी अ बॉय. ठीक है, विद दिस ब्लू हियर आई जस्ट गॉट दिस इमेज ऑफ अ बेबी बॉय. सो मे बी आपका फर्स्ट बच्चा बॉय है, आई मीन बॉय होगा. या तो ऑलरेडी अगर आप इस पर्सन को जानते हो, अगर आप मैरिड हो देन आई मीन अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या तो आपका कोई बेटा है ऑलरेडी, या तो इस पर्सन का और कोई बेटा है. बट आई एम सीइंग दिस बेबी बॉय. सो आई थिंक द फर्स्ट बेबी विल बी अ बॉय फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके वी हैव द 8 of swords. With the Mother of Pentacles. Okay, let me see. I'm getting this feeling कि ये पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव होंगे आपके बारे में. अगर आपको कोई कुछ बुरा भला बोलता है देन ये पर्सन हमेशा खड़े होंगे आपके लिए, फाइट करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे. दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. आपको हर किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे. विद द मदर ऑफ पेंटिकल्स एंड वी ऑल्सो हैव द फादर ऑफ पेंटिकल्स. सो ऑब्वियसली आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं. लाइक रब ने बना दी जोड़ी काइंड ऑफ. You are made for each other, divine counterparts.
That is the feeling I'm getting. And we have the Tower and the Star. So I'm getting this feeling कि since ये person उतने भी like आपसे मिलने से पहले ये पर्सन उतने भी रोमांटिक या वैसे नहीं होंगे कि बहुत सारे रिलेशन में आए हैं, ऐसा नहीं है. शायद वो कभी भी रिलेशन में नहीं आए होंगे या बस एक दो रिलेशन, ऐसा नथिंग मच. सो आप लाइक ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा. आप लोगों का जो मीटिंग है, आप लोगों का जो प्यार जब होगा, जब ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, सो दैट विल बी वेरी अनएक्सपेक्टेड. वो सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा हो सकता है, एंड देन ये बस हो जाएगा. ठीक है. एंड विद द स्टार आई थिंक कि आप मतलब ऑब्वियसली उनके आंखों का तारा होंगे. वो आपको बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, बहुत प्यार करेंगे. ही विल बी वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू, एंड आप उनके लिए एक प्राइज़ जैसे हो जिसको उनको हासिल करना है, जीतना है ज़िंदगी में. सो या दैट इज़ बेसिकली द रीडिंग दैट आई एम गेटिंग फॉर pile number 1. So what we will do is we will see some initials for your person. उनके नाम का initials क्या हो सकता है, and then we will see. Okay. So what do we have? We have a C, if you can see it. Yeah. We have a C. We have an R, a Q, H, I, time will tell. अगर आपके पास अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो, then this is the answer. We have a T. We have a yes. So किसी का आंसर, कोई क्वेश्चन. O, again I, and we have an S, Y, A, again A. Okay. We have a maybe. J, K, L, okay, double L. So that was your reading, pile number 1. I hope you like it. If you liked it, then please do like, share and subscribe and be a part of the family. And we will see you at the next reading. Bye. Hi, hello and welcome. If you have chosen this golden clutcher, then this is your reading. And I hope it resonates. So let's see for my pile number 2s, आपका future husband, wife, partner कैसे होंगे. ठीक है. Okay. We have the Emperor. We have the Sun in reverse. We have the Ten of Pentacles. Okay. Let me see. With the Emperor card, I'm getting the feeling कि ये बहुत lone wolf. The message I'm getting is lone wolf. That is ये किसी का मदद लेना पसंद नहीं करते लाइफ में. ये जो भी करते हैं अपने दम पे करते हैं, अपने मेहनत से करते हैं. एंड ये किसी पे डिपेंड नहीं करते. ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं. ये बहुत सेल्फ सफिशिएंट है. मे बी आपसे एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस.
एंड इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस तो ये थोड़ा मे बी आप लोग जो शादी करेंगे देन दिस इफ दिस इज़ योर वाइफ देन ये थोड़ा मेच्योर होंगे, लाइक यू शी विल बी इन 26-27 years old. एंड इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग तो ये पर्सन आपसे थोड़े बड़े होंगे, लाइक 3-4 साल. दैट इज़ द टाइम लाइन आई एम गेटिंग यू. 4 साल, 3-4 साल, यस. विद द सन इन रिवर्स एंड द 10 of Pentacles, आई थिंक ये आपके पर्सन हो सकता है बहुत रिच होंगे, हाँ, बट वो जितने भी जो भी कमाते होंगे जो भी है वो अपने दम पे करते होंगे. अपना बिजनेस या प्रोफेशन या जॉब जो भी है अपने क्वालिफिकेशन के दम पे करते हैं, अपने लाइक बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, जो भी करते हैं अपने दम पे करते हैं. द सन इन रिवर्स, आई थिंक इनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल रही है, बचपन से लेके बहुत स्ट्रगल करके ये बड़े हुए हैं. एकदम जब ये छोटे थे तब शायद इनके पास शायद फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था उतना ज़्यादा, शायद स्ट्रगल है. आई एम गेटिंग दिस वर्ड स्ट्रगल एंड आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ अ स्मॉल बॉय हु स्ट्रगलिंग, यस. सो ये स्ट्रगल करके बड़े हुए हैं, बट ही विल बिकम रिच इफ ही इज़ नॉट येट. ठीक है, दैट इज़ द फीलिंग राइट नाउ. लेट मी सी. We have the Daughter of Cups. We have the Seven of Cups and the Son of Cups in reverse. Okay. Let me concentrate. I'm getting this feeling कि with the Daughter of Cups, I'm getting this feeling कि मे बी आपको इस इंसान पे क्रश है. ये आपका क्रश हो सकता है अभी इसी वक्त, आपको इस इंसान पे क्रश है, या तो इस इंसान को आप पे क्रश है, बट मुझे जितना ज़्यादा लग रहा है कि आपको इस इंसान पे क्रश है. इफ़ यू नो दिस पर्सन, ऑफ कोर्स. ये इंसान अभी अपने करियर पे बहुत फोकस्ड है राइट नाउ. उनके पास प्यार मोहब्बत के लिए टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने करियर पे. ये स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं लाइफ में, कैसे सक्सेसफुल होना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये इसी के बारे में पूरा दिन भर सोचते हैं अभी इसी वक्त. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज नाउ. ठीक है, एंड फ्यूचर में भी जब आप इनसे मिलेंगे या जब शादी होगा, जो भी होगा, ये हमेशा ये बहुत एम्बिशियस है लाइफ में. इनको आगे बढ़ना है, इनको नई नई चीज़ें करनी है, एक्सपीरियंस करना है, एस्टैब्लिश और ज़्यादा लाइक सक्सेसफुल होना है. ये सक्सेसफुल होंगे बट इनको और ज़्यादा होना है, तो वैसे वो डिटरमाइंड है. आप इनसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा. एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि आप ऑलरेडी आपको इस पर्सन पे एक क्रश है छोटा मोटा सा. यस, या फिर मे बी आप स्टॉक करते हो इस पर्सन को सोशल मीडिया पे. ओके, सो वी हैव द 3 of Cups. लास्ट रीडिंग में भी आया था 3 of Cups. सो डेफिनेटली सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस. वी हैव द 2 of Wands and okay, wait, Mother of Swords. And an extra card popped out, Magician. Yes. Okay.
So celebration होगा, of course, some kind of a celebration will happen. लेकिन I'm seeing the feeling I'm getting is कि इस रिलेशनशिप को लेके इनके लाइफ में कुछ फीमेल फिगर है, समवन वेरी ऑथोरिटेटिव फिगर, फीमेल. इट कैन बी अ मदर, इट कैन बी अ वाइफ, सिस्टर, समवन जो कि मे बी इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट होंगे या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, बैरियर्स क्रिएट हो सकता है इस फीमेल पर्सन के लिए, फीमेल फिगर के लिए, ये कोई भी हो सकता है. एंड बट द गुड थिंग इज़ कि ये बैरियर आप लोग ओवरकम कर जाएंगे विद द मैजिशियन कार्ड. आपके पर्सन, यस, आपके पर्सन इस बैरियर को लाइक ओवरकम करेंगे. आप लोग हैप्पी होंगे ऑफ कोर्स. एंड बट योर पर्सन इज़ वेरी मटेरियलिस्टिक राइट नाउ. लाइक वो बहुत मनी माइंडेड है, बहुत मनी माइंडेड होंगे. उनको बस सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, किसी भी कीमत पे कैसे भी करके, ठीक है. बहुत डिटरमाइंड है वो. ओके. What else? Pile number 2. Pile number 2. Okay. Wow. We have the Two of Cups in reverse. We have the Three of Wands. आई थिंक ये पर्सन उतने इमोशनल नहीं होंगे क्योंकि ये इनके लाइफ में शायद ये पहले बहुत धोखे खा चुके हैं या फिर इनका प्रीवियस कोई रिलेशनशिप रहा होगा जो एकदम हैप्पी नहीं था, उनको बिट्रे किया गया था, उनका हार्ट ब्रेक हो गया था किसी रिलेशनशिप के लिए इन द पास्ट. मे बी वो ये भी हो सकता है. दिस कैन बी द रीज़न कि वो उतने इमोशनल नहीं होंगे, बहुत मनी माइंडेड है. बिकॉज यस, दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. इनको पास्ट में कुछ बिट्रेयल हुआ था इनके साथ या इनका हार्ट ब्रेक हो गया था, तब से ये बहुत क्लोज्ड ऑफ है. ये आपको प्यार करेंगे ऑफ कोर्स, शादी करेंगे, दैट इज़ द रीडिंग वी आर डूइंग. बट ये थोड़े क्लोज्ड ऑफ होंगे, ये उतने रोमांटिक एक्सप्रेसिव नहीं होंगे शायद. With the Three of Wands, I am getting this feeling. So ये पिछले रिलेशन में शायद इनको कोई धोखा मिला था. ये थोड़े हार्ट ब्रोकन हुए थे पहले कोई रिलेशन में. That can be this Mother of Swords that as I said. So it can be the case. And so maybe वो इतने इमोशनल नहीं है, वो थोड़े मनी माइंडेड हो गए, थोड़े क्लोज्ड ऑफ हो गए. तब से ये उतने जल्दी ओपन अप नहीं करते हैं किसी के सामने. With the Three of Wands, I think आप एक ऐसे पर्सन होंगे, दिस इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग, कि आप एक ऐसे पर्सन होंगे इनके लाइफ में जो इनको वापस जीना सिखाएगा या सिखाएगी. इनको वो सारी खुशियाँ आप वापस लौटा दोगे जो ये शायद खो दिए थे या फिर ये बिलीव ही नहीं करते थे. ये एक ऐसे इंसान होंगे जो प्यार में बिलीव नहीं करते, बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल, सक्सेस ओरिएंटेड. लेकिन आप उनके लाइफ में आके आप उनको सिखाओगे कि प्यार क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं. आप उनके लिए एक नया दुनिया उनके सामने खोल दोगे. दिस इज़ द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग. ओके, लेट मी सी.
We have the Eight of Wands. We have the Nine of Wands. Yes. With the Eight of Wands and the Nine of Wands, I think कि आप लोग जब रिलेशन में आओगे तो जो प्रपोज़ल है या जो भी जिसको भी प्रपोज करेगा जब वो थ्रू कम्युनिकेशन, मतलब वो SMS, टेक्स्ट मैसेज या कॉल पे होगा. मुझे नहीं लगता ये आमने सामने होगा. ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी लोगों के लिए दिस विल बी थ्रू अ फ़ोन मैसेज और अ कॉल, वीडियो कॉल, समथिंग, या सोशल मीडिया हो सकता है. एंड विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक ये पर्सन अभी सिंगल है. ये पर्सन अभी किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, या फिर आप अभी सिंगल हो. And oops, yeah, the single. Okay, you have the Two of Swords, yes, and the Nine of Cups and the Daughter of Wands. Okay. With the Two of Swords, I think Nine of Cups and the Daughter of Wands. इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है. ये जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते. ये जल्दी आप पे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे. प्यार, रिलेशन, ये सब पे वो जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं. शायद एज आई सेड वो प्रीवियस धोखे के लिए या हार्ट ब्रेक के लिए. But I'm getting ये आपके साथ रिलेशन में आने से पहले या शादी करने से पहले बहुत सोचेंगे, सोच समझ के कि इनको लाइक ओपन अप करने में इनको बहुत टाइम लगेगा. ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा. आपको थोड़ा उनसे अच्छे से बात करनी पड़ेगी विद द एट ऑफ वॉन्ड्स हियर, ताकि वो ओपन अप करे. द नाइन ऑफ कप्स, आई थिंक ऑफ कोर्स ये प्यार करेंगे आपसे, आप भी इनसे बहुत प्यार करोगे. वी ऑल्सो हैव द डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, सो देयर इज़ डेफिनेटली अ पैशनेट रिलेशनशिप होगा. एंड या सो वो ओपन अप करेंगे, बट पहले वो थोड़ा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो अपने इमोशंस में बिलीव नहीं करते. बट आप उनके लिए एक डोरवे खोल दोगे, लाइक अ न्यू वर्ल्ड टू हिम, कि पैशन क्या होता है, प्यार क्या होता है, उसमें वापस से बिलीव करना आप उनको सिखाएंगे. एंड या ही विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट, ही विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. ठीक है, और कोई मैसेज है देखते हैं. पहला नंबर 2, एनी मोर मैसेजेस फॉर माय फ्रेंड. उप्स, सारे कार्ड्स गिर गए मेरे. ओके, तो उछल उछल के जो सारे कार्ड्स मेरे गिर गए हैं, दैट इज़ द फर्स्ट कार्ड इज़ 10 ऑफ कप्स. सो ऑब्वियसली मैरिज, हैप्पीनेस. ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहेंगे, एक हैप्पी एंडिंग होगा आप दोनों का. वी ऑल्सो हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स. स्टेबिलिटी होगी. एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहेंगे एस्टैब्लिश करना. एंड इनके मन में पहले डर रहेगा कि कहीं इनका जो पास्ट था वो वापस रिपीट ना हो जाए, लाइक कुछ बुरा ना हो जाए. वो थोड़ा डरेंगे पहले, कुछ सब खराब ना हो जाए. बट इवेंचुअली आई थिंक ही विल ओपन अप एंड वो एक बहुत ही स्टेबल फ्यूचर, एक स्टेबल होम क्रिएट करेंगे आपके लिए, एक स्टेबल ज़िंदगी. सो या बेसिकली दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग हियर. उनका फैमिली बहुत बड़ा हो सकता है, लाइक जॉइंट फैमिली, या उनके फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं. या
Okay, so that is the message I'm getting, but I'll get some initials for your person. अब उनके नाम का initials क्या हो सकता है, and then we'll see. Okay, so we have an N, Z, V, C, Q, M, V again, G, Y, X, R, S, M again, R वापस से R, T, H, D. I just got a message, शबनम. मुझे नाम सुनाई दिया, शबनम. I don't know who is it. We have a no. S again. E. F. So that is the reading, you guys. Pile number 2. अगर अच्छा लगा हो, if you liked it, please do subscribe, like and share the video and the channel. Be a part of the family. Thank you so much. मिलेंगे next reading में. Till then, take care. Bye.